the retaliation and the struggle of the British Empire. In our last class, students, actually we started our modern era or a modern history of India with the starting of the British Empire in India. In our last class, we discussed that how the Britishers, the East India Company came to India and established the hubs or trade hubs at the Surat, Madras and the Bengal and control also Odisha. In today's class, we are going to discuss the political extension of the British Empire in India with the Anglo-Maratha War and the Anglo-Mysore War. In our last class, we discussed that how the industrialization started in the England and the Western countries are searching the colonies or the market to sold out their goods. Therefore, they came towards the India, established trading centers, and later they took the advantage of the disputes of the between the many rulers and took control over the many regions. We also discuss about the war of the Plassey and the war of the Buxar 1764. In 1764, अगर हम बात करें before the 1764, the battle of the Buxar, the British Empire or the East India Company only trading in the India, but after the Buxar War, it took political control or political power over the Bengal, Madras and Odisha. In today's class, students, we are going to discuss that how the Britishers demolished the power of the Marathas and the Mysore. In our last second chapter, after the death of Aurangzeb, we discussed the Maratha power and the great ruler Shivaji of the Maharashtra. So you can estimate that how the powerful kingdom was the Maratha, and they are the continually vasting their empire. And when the Britishers entered in the political kingdom in India, the most powerful kingdom was the Marathas. So it is very important for the Britishers to abolish the power or dismiss the power of the Marathas and Mysore and control over the Maharashtra region for their future political kingdom or a political extension of the kingdom. So in today's class, we are going to discuss the Anglo-Maratha War and the Anglo-Mysore War. किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर अपने पॉलिटिकल एक्सटेंशन में को लेकर शुरू हो गए थे। सबसे पहले उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था हाउ टू एब्लिश, हाउ टू डिसमिस द पावर ऑफ द मराठा। मराठा जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे बच्चों, तो मराठा एक ऐसी पावरफुल कह सकते हैं कि किंगडम था जो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल सकती थी। इतना पावर इन लोगों के पास था, इसीलिए ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि कैसे करके हम मराठास को, इनके पावर को जो है वो खत्म करें, और एक मौके की तलाश में थे। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना 200 ईयर की लॉन्ग जर्नी जो है इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। और साथ में आप ये देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक ही अपना कह सकते हैं कि थ्योरी को इन्होंने फॉलो किया, एक ही आइडिया को फॉलो किया, डिवाइड एंड रूल को इन्होंने फॉलो किया। आपस में लोगों को बांटो और फिर इन पे राज करो। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाता है। बिल्कुल ऐसी हालत इंडिया के अंदर हो रही थी कंटिन्यू। जो मुगल एम्पायर डेडलाइन तक चला गया, धीरे धीरे सारे किंगडम्स इंडिपेंडेंट होने लगे। हर राजा, हर रूलर जो है, जो रीजनल रूलर थे, वो अपने किंगडम को एक्सटेंड करने में लग गए, और जिसके कारण आपस में राजपूत रूलर्स, साउथ में चलाए जाए तो छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनके बीच में आपको फूट देखने को मिलती है। आपस में ही, घर में ही कह सकते हैं कि लोग लड़ रहे थे, जिसका फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्हें पता था कि जब दो जने लड़ रहे हैं तो क्यों ना इसका फायदा हम लोग उठा लें। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप देखना किस तरह से यहाँ काम कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एंग्लो मराठा वॉर से। इससे पहले आप जान लीजिए कि हम लेटर मुगल पीरियड के बाद में शिवाजी पढ़ चुके हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद तक
मराठा एम्पायर जो था महाराष्ट्र और साउथ वाले रीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा फैल चुका था और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के सामने सबसे बड़ी पावर थी और सबसे बड़ा चैलेंज भी था कैसे मराठास के पावर को डेमोलिश किया जाए, खत्म किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये वॉर हुए जो 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे, द एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट, एंग्लो मराठा वॉर सेकंड एंड एंग्लो मराठा वॉर नंबर 3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर टॉपिक स्ट्रगल। इसमें देखेंगे आप हमारा जो सब टॉपिक है वो है मराठास और मैसूर को लेकर। ठीक है, 18th सेंचुरी द मराठास वर मेजर पावर ऑफ इंडिया। 18th सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो मराठास उस समय इंडिया की सबसे बड़ी पावरफुल जो कह सकते हैं कि किंगडम था, सबसे बड़ी पावर थी। आफ्टर द बैटल ऑफ द पानीपत फ्लड on the 14th January 1761 the Marathas power suffered setback। अब यहाँ पर आपको कुछ याद आया होगा बच्चों, हमने अभी तक की क्लास के अंदर 2 पानीपत के वॉर के बारे में पढ़ लिया है। फर्स्ट पानीपत का वॉर मैंने पढ़ा दिया था, सेकंड पानीपत का वॉर जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, थर्ड पानीपत का वॉर जो है वो ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में हुआ था। ये ध्यान रखना, यहाँ वापस आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंडियन हिस्ट्री में टोटल 3 पानीपत के वॉर हुए थे। थर्ड जो वॉर था वो मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था 1761 के अंदर। इसके बाद में धीरे धीरे साउथ इंडिया में मराठास पावर धीरे धीरे सेटबैक पे चली गई, मतलब कम होने लगा इनका पावर। ठीक है, द ब्रिटिशर्स वर सर्चिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोलिश द पावर ऑफ मराठास। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स जो थे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी मौके की तलाश में थे कि कैसे मराठास के पावर को कम किया जाए, लेकिन इनको वो मौका मिल भी गया। ठीक है, इन 1772 आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पेशवा नाम है इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि पेशवा का मतलब वहां पर महाराष्ट्र के अंदर मराठास के अंदर जो रूलर होता था उसको पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा जो है एज ए किंग की पोस्ट होती है, बस अंतर इतना है कि हम नॉर्मली किंग रूलर वर्ड यूज करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर इनको पेशवा कहा जाता था। 1772 के अंदर यहाँ के रूलर थे जिनका नाम था पेशवा माधवराव। इनकी हो जाती है डेथ और इसी के साथ में इनका जो बेटा था वो था नारायण राव। सॉरी, ये जो था नारायण राव ये था इनका भाई, ये नारायण राव जो है ये ब्रदर था। ठीक है, तो पेशवा माधवराव की डेथ के बाद में महाराष्ट्र का मराठा पेशवा कौन बनता है? नारायण राव। बट यहाँ पर पेशवा माधवराव के नारायण राव के जो अंकल थे उनका नाम था रघुनाथ राव, हु वांटेड टू बिकम द पेशवा ऑफ मराठा। यहाँ पर अब यहाँ मौका मिल जाएगा ब्रिटिशर्स को। कैसे? देखिए बच्चों, वापस बता रही हूँ, माधवराव महाराष्ट्र के मराठा पेशवा थे, मतलब यहाँ के रूलर थे। इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ के बाद में नारायण राव जो उनका भाई था ये बन गया रूलर। ठीक है, लेकिन इस नारायण राव के अंकल थे, नारायण राव के अंकल थे रघुनाथ राव, ये बनना चाह रहे थे पेशवा और यहाँ मिल गया ब्रिटिशर्स को मौका आपस में लड़ाने का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री जो पूरी मैं बता देती हूँ कि ब्रिटिशर्स डिसाइड टू हेल्प द Raghunath Rao to become the Peshwa of the Maratha, and therefore they signed the treaty which was known as the Treaty of Surat। सूरत की ट्रीटी हुई ब्रिटिशर्स और माधवराव के बीच में, जिसमें माधवराव को ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया कि वे उसको मराठा के पेशवा बनने में ब्रिटिशर्स जो है वो पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नारायण राव को हटाकर रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में ब्रिटिशर्स ने सूरत ट्रीटी साइन की। और दूसरी चीज ये कही कि बदले में ये जो रघुनाथ राव है ये ब्रिटिशर्स को लगान जितना वो कलेक्ट करता था सूरत से, संसद से, वो सारा लगान का पैसा ब्रिटिशर्स को देगा। तो आपस में दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। क्या समझौता हुआ कि रघुनाथ राव जो है इसकी हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स पेशवा बनने में, और सेकंड ये फैसला ये हुआ कि रघुनाथ राव जितना लगान आता है सूरत से, संसद से, वो सारा लगान जो है वो ब्रिटिशर्स को मिलेगा, उसका पैसा जो है वो ब्रिटिशर्स को मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर भाइयों को लड़ाने का काम ब्रिटिशर्स ने किया।
ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बताया रघुनाथ राव wanted to become the Peshwa. The Britishers got the chance to divide Marathas and signed the Treaty of Surat 6 March 1775. इम्पोर्टेंट कभी जीना कई बार ये ट्रीटी पूछी गई है और डेट पूछी जाती है कि सूरत की जो ट्रीटी है वो किन के बीच में हुई और कब हुई, तो ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी 6 मार्च 1775 को। अब इसके प्रोविजन क्या थे, ट्रीटी के अंदर क्या फैसला लिया गया, दैट ब्रिटिशर्स हैड द रघुनाथ राव, पहला फैसला लिया गया कि ब्रिटिशर्स जो है वो रघुनाथ राव की पेशवा बनने में मदद करेंगे। सेकंड, he gave the half of Ladakh to the Britishers obtained from the Bassi, Surat and the Salsat, और रघुनाथ राव के पास में सूरत से, संसद से और वैसी से जितना भी लगान आ रहा है उसका आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देंगे। तो इस तरह से सूरत की ट्रीटी जो है वो साइन हुई और इसके बाद शुरू होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। याद रखना ये ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में 3 वॉर हुए थे जिनको अलग अलग टाइम पे हुए थे, इसलिए इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम दिया गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। यहाँ पर ट्रीटी हो गई, दोनों के बीच में समझौता हो गया है और ब्रिटिशर्स जो है वो रघुनाथ राव की हेल्प कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाकी सारे पेशवा हैं, बाकी सारे मराठास हैं जो दोनों आपस में लड़ने वाले हैं, जिसको एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। The Britishers was defeated by the Marathas। अब ध्यान रखना कि फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर के अंदर जो है ब्रिटिशर्स डिफीट हुए थे, ब्रिटिशर्स हार गए थे और ट्रीटी ऑफ द बड़गांव 1779 वाज साइन और एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में बड़गांव की ट्रीटी हुई। बच्चों यहाँ पर आपको ट्रीटी सारी याद रखनी पड़ेगी, कोई भी ट्रीटी पूछ लेंगे किसके बीच में हुई और डेट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़गांव ट्रीटी जो है ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में साइन हुई क्योंकि ब्रिटिशर्स हार गए थे, अब इन्हें बदले में कुछ न कुछ इनको देना था। ठीक है, 1779 में अब इसके कुछ प्रोविजन थे। बड़गांव ट्रीटी में क्या शर्तें रखी गई वो आगे है। द ब्रिटिशर्स मेड द बेटर रीजन। सबसे पहली बात तो पहले जितने भी रीजन जो है, जितने भी एरिया ब्रिटिशर्स ने मराठाओं से छीन लिए थे वो सारे रीजन जो है वापस मराठा को लौटाएंगे ब्रिटिशर्स। सेकंड था हैंड ओवर रघुनाथ राव पुणे कोर्ट, और रघुनाथ राव को पुणे कोर्ट को सौंप दिया जाए और बाद में रघुनाथ राव पर केस चलाया गया था पुणे कोर्ट के अंदर क्योंकि यहाँ पर इसने धोखा दिया, ब्रिटिशर्स का साथ दिया, पेशवा बनने के लिए एक षड्यंत्र रचा था इस कारण। ठीक है, और थर्ड था पे 41,000 एज द वार डैमेज, और जितना भी मराठाओं को नुकसान हुआ था, वॉर में डैमेज हुआ था, उसकी भरपाई ब्रिटिशर्स करेंगे। कितनी? 41,000 रुपीज, 41,000 रुपए जो है ब्रिटिशर्स देंगे मराठाओं को क्योंकि जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करेंगे। तो ये थी ट्रीटी जो थी बड़गांव की, उसकी 3 शर्तें थी, इसमें ब्रिटिशर्स हार गए। अब ब्रिटिशर्स हार गए लेकिन इन्होंने ये वापस उठकर खड़े हुए अगेंस्ट द मराठास और यहाँ पर हो जाता है सेकेंड एंग्लो मराठास वॉर जो चलता है 1802 से 1805 तक चलता है ये वॉर कंटिन्यू। यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों कि मराठा वॉर के अंदर यहाँ पर जितने भी मराठा चीफ थे, अब ये जो चीफ थे वो 3 थे, एक थे जो है सिंधियास, एक थे भोसले और जो तीसरे थे वो थे पेशवा। ठीक है, इन तीनों को ही अलग अलग समय पर ब्रिटिशर्स ने हराया था। तो ये 3 जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो 3 पार्ट में बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात द रीजन ऑफ द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्या था, कारण क्या था, रीजन क्या था। द इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली। अब यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, लॉर्ड वेलेस्ली जो है इंडिया का गवर्नर था ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू। यहाँ पर अपॉइंटेड एक पर्सन होता था जो इंडिया के पॉलिटिकल डिसीजंस लेता था। ठीक है, जिसको गवर्नर कहा गया था। ये लॉर्ड वेलेस्ली उस समय इंडिया के गवर्नर बन के आए थे और इनकी बहुत बड़ी एम्बिशन थी एम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस। एम्पीरियलिस्ट का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को पूरे देश के अंदर आगे से आगे बढ़ाना, सबको अपना गुलाम बना लेना। तो पहली तो चीज ये हो गई कि यहाँ पर अगर वेलेस्ली इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन रखता है, इसका मतलब वो चाहेगा कि सब उसके गुलाम बन जाए। सेकंड रीजन था द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मराठा चीफ्स। यहाँ पर आप
से जाना गया 1803 में। द भोसलेस वर डिफीटेड इन दिस वॉर। इस वॉर के अंदर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने भोसलेस को हरा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि भोसलेस वर डिफीटेड एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ द देवगांव 17 दिसंबर 1803। और यहाँ पर भोसले और ब्रिटिशर्स के बीच में देवगांव की ट्रीटी हुई, संधि हुई, समझौता हुआ 17 दिसंबर 1803 में, जिसमें भोसले के जितने भी रीजन थे वो सारे ब्रिटिशर्स के पास में चले गए। सेकंड बैटल हुआ था बैटल ऑफ द लालावाड़ी, बैटल ऑफ लालावाड़ी, सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में। अभी सिंधिया कौन है? ये भी मराठा चीफ हुआ करते थे। तो सेकंड टाइम सिंधियास को हराया ब्रिटिशर्स ने। याद रखिएगा, सिंधियास वर डिफीटेड एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ सुरजन-अर्जन-गांव 13 दिसंबर 1803। तो अंग्रेजों ने सिंधियास को हराया, इनके साथ भी इन्होंने एक ट्रीटी की। ट्रीटी का मतलब समझौता किया, और जिसको सुरजन-अर्जन-गांव ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। डेट बच्चों सारी ट्रीटीज की याद रखनी है, ठीक है? 13 दिसंबर 1803 AD। फिर आ जाता है होलकर्स वर्सेस ब्रिटिशर्स। अब ये होलकर्स कौन है? दे आर आल्सो द मराठा चीफ। ये भी मराठा चीफ थे, इनके बीच में भी वॉर हुआ। होलकर्स वर डिफीटेड, इसमें होलकर्स वो हार गए एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ द राजघाट। और ब्रिटिशर्स ने इनके साथ में भी एक ट्रीटी साइन की, जिसको राजघाट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सेकेंड एंग्लो वॉर में कई सारे मराठा चीफ्स को ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया, जिसमें पहले जो थे वो थे भोसले, ठीक है? सेकंड जो थे वो थे सिंधिया, और जो थर्ड थे वो थे होलकर्स के नाम से जाने गए। तीनों को अलग अलग सामान में हराया और कई सारी ट्रीटीज यहाँ पर साइन की। अब हम चलते हैं बच्चों थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है, वापस ये सारे जितने भी चीफ थे वापस यूनाइटेड हुए, एक साथ हुए, और इन सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बैटल फाउट किया, जिसको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता था। क्योंकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में इन सारे चीफ को पता चल गया था कि अगर हम इसी तरह से लड़ते रहे तो महाराष्ट्र या जो साउथ का रीजन है वो पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय ये पेशवा, सिंधिया, भोसले, होलकर्स मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़े, ठीक है? अब देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ। द मराठास चीफ पेशवा, होलकर्स एंड भोसले वर डिफीटेड 18 जून 1818 ट्रीटी वाज साइंड विद द पेशवा। और यहाँ पर थर्ड एंग्लो वॉर के अंदर फाइनली मराठास बुरी तरीके से डिफीट हो गए, बुरी तरीके से हार गए। अब आप समझ लीजिए कि ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में मराठा पावर हमेशा के लिए डेक्लाइन की तरफ चली जाती है। मतलब महाराष्ट्र वाला जो किंगडम था उस पर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाता है। और पेशवा के साथ में 18 जून 1818 को एक ट्रीटी साइन होती है, जिसकी शर्तें क्या थी? द पोस्ट ऑफ पेशवा वाज अबॉलिश्ड। पेशवा की पोस्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। वापस बता रही हूँ बच्चों, पेशवा का मतलब मराठा किंगडम के अंदर जो रूलर होता था, जो सुप्रीम हेड होता था, उसको पेशवा कहते थे, ठीक है? तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में पेशवा की पावर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। एंड पेशवा वाज सेंट टू बिठूर विद द 8 लाख पेंशन। और जो पेशवा था मराठा का, उसको बिठूर भेज दिया गया, ठीक है? और 8 लाख की पेंशन जो थी ईयरली इसको दी जाने लगी। तो आप क्या समझ लीजिए कि पेशवा का जो पॉलिटिकल पावर था साउथ इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़ रहे हैं, और ये भी जानना है कि एंग्लो मराठा वॉर के अंदर बच्चों यहाँ पर 3 वॉर हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। धीरे धीरे हर बैटल के अंदर मराठास अपनी पावर खोते गए, डेक्लाइन की तरफ चले गए, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तक ये जो पावर थी मराठास की हमेशा के लिए खत्म हो गई। लास्ट में पेशवा को बिठूर भेज दिया गया और 8 लाख की ईयरली पेंशन इसको वहां पर दी जाने लगी, ठीक है? ताकि ये अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ पर बैठा रहे। अब आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर की। अब आप देखिएगा ये सेकंड पावर थी इंडिया में, जिसको ब्रिटिशर्स खत्म करना चाह रहे थे।